Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revise your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is functions in Excel 2016. In this chapter, we will be going to learn about different functions which we use in our Microsoft Excel spreadsheet software. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is Functions in Excel 2016, and the topics which we will discuss in this lesson are functions in Excel, function library, types of functions in function library, insert function, common functions, auto sum functions, LCM function, GCD function, data sorting, conditional formatting, and filtering data. Now we have an amazing thought: prevention is better than cure. And we have an activity which says, here are given some data, read the question and answer the following question. Question 1 is, how many children like grapes? हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इन फ्रूट्स को लाइक करते हैं. तो ग्रेप्स कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? इट इज 10, then 11, 12, 13. So we can write here 13. Then how many children like mango? So mango is 20. And then the question is, how many children like guava more than orange? So guava, then orange. So it is 11, 12. So it is 1. 1 more than orange. Now, let's start. Mayank says, hello Kavya, today we shall learn about functions in Excel. He says, oh hi Mayank, actually I am worried about functions in Excel. I am really confused between functions and formulas. Are they same? Do you know functions? Then he says, oh don't worry, formulas and functions both are two different terms, and in this chapter we shall learn about functions in Excel. He says, thank you very much, it will be a great to learn about it. Now functions in Excel. Function एक predefined formula होता है in Excel. ये start होता है with the equal to sign. Functions are used for computing complex calculations. हम functions का use करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, complex calculations को compute करना होता है. ये built-in functions होते हैं वहां पे जो provide होते हैं हमें in Excel. Now they accept arguments. ये arguments को accept करते हैं और return करते हैं कुछ values. Arguments जो है वो input होते हैं to the functions. The values should be given in between opening and closing parenthesis. यहाँ पे जो values है वो opening और closing parenthesis के अंदर ही आनी चाहिए. For example, sum b1 is to b4. तो ये हमने parenthesis में लिखा. b1 and b4 are arguments and sum is a function. Excel include करता है many common functions that can be used to quickly find sum, count, average, maximum and minimum value for a range of cells. ये जो फंक्शंस है ये प्रेजेंट होते हैं इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फॉर्मूला टैब. फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस? फंक्शंस के क्या क्या कंपोनेंट है? हर एक फंक्शन के पास दो कंपोनेंट होते हैं. इन शॉर्ट, ईच फंक्शन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग: फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट. तो फंक्शन नेम हमें बताता है व्हाट कैलकुलेशन टू परफॉर्म और आर्ग्यूमेंट बताता है वैल्यू नीड टू बी स्पेसिफाइड इन फंक्शन. फंक्शन एक रूल है जो रिलेट करता है वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल क्वांटिटी टू द वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल क्वांटिटी. Now we write function arguments with simple brackets and name are written with an equal to sign. Let us take a look at below function which we have inserted in the cell C3. तो C3 में हमने क्या डाला? Equal to sum C1 plus D1. Now if you look at the formula bar, you understand the structure of function by splitting it into two parts. अब अगर आप फॉर्मूला बार को देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया, स्प्लिट कर रखा है दो डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज नेम एंड आर्ग्यूमेंट. रूल्स क्या होते हैं फंक्शन को इंसर्ट करने के इन एक्सेल? हियर आर सम रूल्स व्हिच आर यूज्ड यूजिंग अ फंक्शन. एक इक्वल टू साइन यूज होता है टू द बिगनिंग ऑफ फंक्शन. फंक्शन नेम जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, जैसे एवरेज, सम, एटसेट्रा. कॉमा को हम यूज करते हैं टू सेपरेट फंक्शन इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स. एंड क्लोज करना है सारे फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स को विद इन पैरेंथेसिस. फंक्शन नेम जो है वो फॉलोड होना चाहिए बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. Now, what is function library? Function library क्या है? There are predefined formulas जो अवेलेबल होते हैं MS Excel के अंदर और वो कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं. हर एक के पास कुछ डिफरेंट फंक्शंस और रूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आप देख सकते हैं. Now, function library कंटेन करती है all the formulas जो अवेलेबल है विद इन Excel
Function library group has insert, function, autosum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup and reference, maths and trig, and recently used buttons, etc. कुछ फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम बटन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप एक्सेस कर सकते हो फंक्शंस को इन द लाइब्रेरी either by clicking one of the category buttons in the function library या फिर by searching for a function using the insert function. Types of functions क्या है in function library? तो given below are major types of functions present in the function library. सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट फंक्शन। इनका हम यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, जो हमारा टेक्सचुअल डेटा होता है, जहां पे भी हमें हमारे पास टेक्स्ट होता है उस डेटा के साथ हम इसका यूज करते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू टू अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इनका यूज किया जाता है टू एनालाइज डेटा इजीली। लॉजिकल फंक्शंस, ये इवैल्यूएट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को और रिटर्न करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस, एक्सेल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इन फंक्शंस का यूज करते हो अच्छी कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए। Date function, date are one of the major ingredients of data that you use every day. So they help you to analyze your data in a better way. फिर आता है टाइम फंक्शन। जस्ट लाइक डेट्स, टाइम को भी यूज किया जाता है टू बी देयर इन डेटा, एंड टाइम फंक्शन को यूज किया जाता है टू डील विद डेटा वेयर यू हैव टाइम वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लुकअप फंक्शंस। इन एक्सेल देयर आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस जो हमारी हेल्प करते हैं टू लुक अप अ वैल्यू और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स। तो इंफॉर्मेशन फंक्शन है नेक्स्ट। देयर आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस जो हम देखते हैं, हम यूज करते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज यू सप्लाई। फिर आता है फाइनेंशियल फंक्शंस। ये हेल्प करते हैं हमें टू कैलकुलेट सम कॉमन बट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इन एन इजी वे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन हेल्प करता है हमारी जब भी हमें कोई करेक्ट फॉर्मूला इंसर्ट करना है या आर्ग्यूमेंट फॉर योर नीड। तो ये ऑल्सो हम इसका यूज करते हैं टू सेलेक्ट या फिर एंटर मोर देन वन आर्ग्यूमेंट फॉर अ फंक्शन। तो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी सेल सेलेक्ट करना है, देन आप क्लिक करोगे फॉर्मूला स्टेप पे, क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट लाइब्रेरी ग्रुप। देन एक इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आएगा विद मेनी फंक्शंस लाइक दिस। सेलेक्ट करना है सम फंक्शन को एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा विच इज दिस। टाइप द आर्ग्यूमेंट्स इन नंबर फील्ड, दैट इज रेंज ऑफ सेल्स टू फाइंड देयर नंबर। यहाँ पे हमने क्या दिया है, C2 to C6 एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। आपका रिजल्ट अपीयर हो जाएगा इन द सिलेक्टेड सेल एंड यू विल यूज अदर फंक्शंस इन द सेम मैनर। So students, now our next topic is common functions. Let us learn about common functions in Excel. तो सबसे पहला आता है sum. Sum function क्या करता है, ऐड करता है हमारे numbers को in a given range of cells that you specify as argument. तो इसका syntax होता है sum and then यहाँ पे हम डालते हैं range of cells. तो इसके example है जैसे sum और range में हमें डाल दिया C2 to C6. तो this is how we calculate sum. एवरेज फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज ऑफ रेंज वैल्यूज। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है दैट कैन बी रेंज ऑफ सेल्स, सिंपली नंबर्स या फिर नंबर्स अलोंग विद सेल रेफरेंसेस। इसका सिंटेक्स होता है एवरेज इन कैपिटल लेटर्स देन रेंज ऑफ सेल्स लाइक दिस। तो हमारा यहाँ पे टोटल एवरेज निकल के आ जाता है ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स। फिर आता है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स जो कंटेन करता है न्यूमेरिक डेटा को इन द गिवन रेंज ऑफ सेल्स। और इसका भी सिंटेक्स कैसे होता है, काउंट इन कैपिटल लेटर्स देन रेंज ऑफ cells. For example, count C2 to C6. मिनिमम ये क्या होता है, MIN, ये मिनिमम होता है जो क्या करता है, स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमम वैल्यू को देता है फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ सेल्स एंड गिव्स आउटपुट। इसका सिंटेक्स होता है मिनिमम और फिर रेंज। तो MIN कैपिटल लेटर्स देन वी जस्टिफाई द रेंज। नाउ मैक्स, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू देता है फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज एंड इसका सिंटेक्स होता है मैक्स देन रेंज ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल मैक्स इज इक्वल टू C2 to C6 एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई 90। इफ फंक्शन को हम कंडीशनल फंक्शन बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है टू टेस्ट अ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स फॉर अ सर्टेन कंडीशन एंड ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को। तो इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें टेस्ट करना होता है मोर देन वन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल हैज बीन पेड और नॉट। तो इफ लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, जहां पे लॉजिक टेस्ट क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट
is what you want to test for value if true, and is what you want to do if the answer of the first argument is yes, and the value if false is what you want to do if the answer of the argument is 0, is no. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे if C2 is greater than D2, C2 is greater than D2, C2 is less than D2. Now the cell C2 shows input value that is 89 and D2 87. So 89 is greater than 87. Output क्या आएगा? C2 is greater than D2. फिर आता है ऑटो सम फंक्शन। तो ऑटो सम फंक्शन का हम यूज करते हैं टू सम द वैल्यूज ऑफ कॉलम्स या फिर रोज विद अ सिंगल क्लिक। ऑटो सम रिप्रेजेंट करता है एज अ ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा। ये ऐड करता है अप टू 255 नंबर्स एट वन टाइम एंड यू कैन यूज ऑटो सम टू सम द रेंज ऑफ सेल्स। हम रेंज ऑफ सेल्स का सम कराने के लिए भी इस फीचर का यूज कर सकते हैं एंड रेंज कैन बी वन सिंगल सेल और मेनी सेल्स। आप यहाँ पे क्या करोगे, यू कैन सम सेल्स इन अ कॉन्टिन्यूअस यानी कि नो गैप रेंज ऑफ सेल्स या फिर नॉन कॉन्टिन्यूअस यानी कि सेल्स नॉट जॉइंट टुगेदर रेंज। आपको दोनों में से किसी भी रेंज का यूज कर सकते हो एंड इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सेल D7, फिर फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑटो सम ऑप्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पे, वहां से क्लिक करना है ऑन सम फंक्शन एंड योर रिजल्ट अपीयर्स इन द सिलेक्टेड सेल। Now the next function is LCM function। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल सप्लाइड नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल LCM ऑफ 90 और 60 निकालना है जो रिटर्न करेगा 180। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज LCM फंक्शन। सबसे पहले आपको सेल पे क्लिक करना है जैसे सेल 11, देन क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, क्लिक ऑन मैथ एंड ट्रिंग ऑप्शन, देन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप एक लिस्ट अपीयर होगी, वहां से आप LCM फंक्शन पे क्लिक करोगे, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा आपकी स्क्रीन पे जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं इन नंबर फील्ड दैट इज A11, B11, C11 in number 1, number 2 and number 3 text box, then click on OK button and your result appears in the selected cell. Now next is GCD function। GCD function क्या करता है, हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देता है जो डिवाइड करता है नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। तो फॉर एग्जांपल GCD 60 और 90 जो रिटर्न करेगा हमें वैल्यू 30, सिंस 30 लार्जेस्ट फैक्टर है जो दोनों नंबर्स के साथ जाता है। एंड टू यूज दिस फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है सेल, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, मैथ एंड ट्रिंग ऑप्शन, फॉर्मूला लाइब्रेरी ग्रुप में से जो अपीयर होगा आपको GCD फंक्शन को चूज करना है, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सिमिलरली आपको प्रीवियस वाले की तरह ही A11 B11 में दोनों वैल्यूज डालनी है, देन क्लिक ऑन ओके बटन, आपका रिजल्ट आपके सेल पे अपीयर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डेटा सॉर्टिंग। तो जब भी हम अरेंज करते हैं अपने गिवन सेट ऑफ डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग, उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेल्स विद द डेटा टू सॉर्ट, फिर क्लिक करेंगे डेटा टैब पे एंड देन क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा ऑन द स्क्रीन, वहां से आपको एक ऑप्शन चूज करना है दैट यू वांट, जैसे total marks in sort by values in sort on largest to smallest in order, then click on OK button, आपका रिजल्ट अपीयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। फिर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ करता है हमें कि हम चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस अपने सेल का या फिर फॉर्मेट द डेटा इन अ वर्कशीट जो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। जैसे आप चाहते हो कि ओवरऑल एवरेज डिस्प्ले हो ऑफ स्टूडेंट एग्जाम स्प्रेडशीट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड। तो आपको सबसे पहले सेल रेंज चूज करनी है ऑन अ वर्कशीट, जैसे फॉर एग्जांपल A1 to D7। फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है इन स्टाइल्स ग्रुप अंडर होम टैब, फिर आपको क्लिक करना है ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग एरो टू स्पेसिफाई कंडीशन। इफ यू क्लिक हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे, टाइप करने हैं वैल्यूज टू फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन, सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग स्टाइल जैसे light red fill with dark red text, click on OK button, you will get your desired results। हम यूज कर सकते हैं built in conditional formatting rules का to flag the top and bottom values in a spreadsheet। फिल्टरिंग डेटा, एक्सेल अलाउ करता है हमें कि हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा देखें और हाइड कर दें अपना टेम्पररी डेटा या फिर अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द सेट ऑफ डेटा। फिल्टरिंग ऑफर करता है एक क्विक वे कि हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इन अ सेट ऑफ डेटा इन अ रेंज।
तो फिल्टरिंग रेंज, जो फिल्टर रेंज होती है वो डिस्प्ले करती है एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स इंस्टेड ऑफ ऑटो फिल्टर मेन्यू। ये ऑल्सो डिस्प्ले करता है रोज जो मीट करते हैं कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फिल्टर द डेटा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स। फिर आपको क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन पे इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। स्मॉल एरो विल बी एडेड टू द कॉलम हेडिंग। फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है एरो पे जो अपीयर होता है कॉलम हेडिंग पे लाइक दिस, दैट इज लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी विद द वैल्यू सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपको किसी भी एक वैल्यू पे क्लिक करना है जो आप चाहते हो एंड क्लिक ऑन मनमोहन एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक इक्वल टू साइन का यूज किया जाता है टू बिगिन द फंक्शन। फंक्शन लाइब्रेरी कंटेन करता है ऑल द फॉर्मूलाज दैट आर अवेलेबल विद इन एक्सेल। इंसर्ट फंक्शन का यूज किया जाता है टू इंसर्ट द करेक्ट फॉर्मूला एंड आर्ग्यूमेंट फॉर योर नीड्स। एवरेज फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज ऑफ रेंज वैल्यूज। ऑटोसम फंक्शन का हम यूज करते हैं टू सम द वैल्यूज ऑफ कॉलम और रोज विद सिंगल क्लिक। ऑटोसम रिप्रेजेंट करता है ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा। तो जब भी हम अरेंज करते हैं गिवन सेट ऑफ डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसे बोला जाता है सॉर्टिंग। एंड फिल्टरिंग ऑफर करता है क्विक वे टू एनालाइज डेटा इन अ सेट ऑफ डेटा इन अ रेंज। Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Functions are predefined formulas. Which function find the largest number in the range? Maximum. Which function find the largest positive integer to divide करता है number without a remainder? So it is least common multiple. Now under which group the conditional formatting is present? Editing group. Now fill in the blanks. Dash are predefined operations or commands that work on a step. So these are functions. Now dash sign is used to begin the function equals to dash function returns the least common multiple of integer, least LCD. Then AutoSum feature represented as Greek capital letter ma. Functions are present in the formulas tab. That's true false. Formula are entries that have an equation that calculates the variety to display. True. If this is a conditional function, true. GCD function returns the least common multiple of integer, false. Next is filtering offers a quick way to analyze data in a set of data in a range, true. We cannot apply conditional formatting in Excel, false. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again at your own and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.